Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yeah, Marcel, you are audible and there is a background sound. Can you take a place where sound is not coming? Okay. Hello. Better? Yes, better. You can start. Good evening everyone. I hope you are enjoying our vacations. So we and Mani Connect come with a summer sprint 26. Learn, build and launch your career. I hope you all know about Manu Connect. Let me give a brief introduction. Manu Connect is a community that brings together students, alumni, and professionals to learn and share knowledge and support each other through webinars, mentorships, and various learning initiatives, through which we aim to help skills, explore careers, and connect with industry experts. So we have two speakers. We go one by one. So our first speaker is Mr. Dilsad Asraf. So I will give a brief introduction about him. He completed his diploma and BTech in computer science and information technology from Manu and is currently working as an associate software engineer at Commonwealth Bank. He has also worked at Infosys and has valuable experience in software development and the IT industry. So now I would like to Dilsad Asraf sir to come and continue. Yeah, thanks Madasir, and thanks everyone for joining. Hope you have already got my intro, so no need to go through the intro. So first, I want to know, so like, from which department, like all are from the BTech or MBA or from where? So, and from which year the people are joining? Generally, they start by all of the CSIT students. Yes, so like in the CSIT, we do have BTech and MCA and MTech, right? So all are from the BTech only, or MCA and MTech also? So why I'm asking, because based on that, I might be giving some different context. That's the reason. Yes. So I think many of them are from BTech and some they can, of my. Yeah, they can ping you in the chat group. So I think there is some chat group also. Everyone can message in the group. It will be more helpful if you speak something or if you say something. Also mention like BTech first year, second year, whatever it is, just to get idea. So based on that, we'll be talking and we'll be proceeding with this session. One is from the BTech CSEs and BTech CS second year. Anyone from final year and who has already completed or BTech final year? Not yet. Manu Connect, you have scheduled the session on Saturday. Everyone has a plan for enjoying this weekend, so that's reason everyone is not in mood to enjoy this session. Maybe. Actually, it may possible. Okay. I got few response, only 3 response. Okay, fine. So if you are not able to talk or chat, then fine.
Let me share my screen. So hope you guys are able to see my screen, right? It is okay to talk in English or Hindi भी चाहिए बीच-बीच में. People are not comfortable to talk in English. I think mix रहे थे ज़्यादा अच्छा. अच्छा ठीक है. मैं भी सेम प्लेस से निकला हूँ, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है. Okay, so I got few information messages in the chat groups from the BTech first year and second year and BTech CSE. Okay, so before starting, so I want to ask something from you guys. Okay, 1 second. How many of you started learning something? कितने लोगों ने कुछ स्टार्ट कर दिया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, है ना? Something, anything from the chat? और स्टार्ट ही नहीं किया आप लोगों ने? At least you can say, I'm not asking to open your camera or anything. No one. I think these guys are like शर्मा रहे हैं थोड़ा ज़्यादा ही. Hey guys, आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. You will be working with you will be working in team. तो आप लोग को टीम के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तभी तो then we can talk. Yes, Sarfraj, can you have raise your hand? Do you want to say something? Okay, fine. And अगर आप लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया तो then how can you proceed? What can I say? और कितने लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है to start something? फर्स्ट ईयर वाले भी अच्छे. First year person will be like, candidate will be, so who is going to complete first year, right? Second semester. And second year will be completing the second semester, the fourth semester, right? New admission तो अभी हुआ नहीं है अभी तुझ. हाँ अभी तो फर्स्ट ईयर वाले कंप्लीट हो गए लगभग सारे. Okay. Oh, guys, come on. We have seen so lots of people are there. 21 people have joined. Sarfraz is trying to talk something. I'm not sure, so he's raising hand. Sarfraz? Okay, fine. If you are not okay to talk, then I will say something then. So everyone know about me, so I'm Dilshad Ashraf. So working as a full stack engineer in the CBS services in Bangalore. So I work in the different companies like Infosys. Before Infosys, I worked with the 2 more companies, and I have around 7+ years of experience in the different technologies. Okay, so let me go ahead with the one thing. So like, if you are in the first year or second year, whatever, third year or final year, lots of things have to learn, right? अभी के मार्केट में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आप देखिए एज ए फ्रंट एंड बैक एंड और वॉट एवर इट इज़, AI, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, ठीक है, फ्रंट और API स्टफ, बहुत सारी चीज़ें. तो क्या लर्न करना है, बहुत सारी चीज़ें. बहुत लोग का माइंड में है ऐसा कुछ आपके पॉइंट में है कि जो anyone has started learning something, they can ping me in the chat group. Anyone interested to share something in the chat group? No one? Oh no. Again. In general, because in general, many of the students asking me separately, but I don't know why they don't share in the chat. Okay. अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं? Have anyone?
3 or yeah, this yes, I want to learn something. Shahid Hussain, thanks for applying. Done something fine, but anyone has started something? मतलब कुछ स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने लर्निंग करना? HTML fine, good. So Imran, are you also recording this session or how it is? Yes, so it is in record. Okay, fine. Yes, Sahid Hussain started C++. अरे आप लोग को सेशन में आई थिंक फर्स्ट ईयर, इन द फर्स्ट ईयर वी डू हैव सी सी प्लस प्लस, सी प्लस है ना, सी सी प्लस सी है, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन, पाइथन भी है क्या? क्या 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 सेशन है आप लोग के पास? मतलब सब्जेक्ट्स क्या है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड? I think Apart from- सारी लैंग्वेज सारी आती है, मतलब अलग अलग ईयर में, सेमेस्टर्स में ऐसा रहता है. I have joined as a second year in the BTech lateral entry, so I don't have idea in the first year what all things, what all subjects are there. Okay, so HTML started to see first year code subject math and PPS. What's PPS? Okay, it's a C. Okay. Okay. Anyone heard about any like to start working on AI related stuff? Python तो सुना होगा ना, Python. देखिए ये सेशन बेसिकली क्या होने वाला है ना कि अगर आप लोग कुछ रिस्पॉन्स करेंगे बेस्ड ऑन दैट, वाई बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग, मेरे पास क्या बहुत सारी चीज़ है कि कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, तो आपको आपने कहाँ से स्टार्ट किया, क्या किया है, वो डिस्कस लेटर. ठीक है, आप लोग ने कुछ स्टार्ट किया रहेगा तो उस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, गाइडेंस कर सकते हैं, मतलब गाइड कर सकते हैं, और क्या क्या प्रोसेस करना है आगे फ्यूचर के लिए, तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा मेरे लिए. ओके फाइन, ठीक है. अभी आप लोग का अगर मालूम नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव आइडिया लाइक व्हाट्स लॉट्स ऑफ थिंग टू लर्न, सो इफ़ यू आर इन द फर्स्ट ईयर, अगर फर्स्ट ईयर में आप लोग हैं तो सी सीख रहे हो, डेफिनेटली यू विल बी लर्निंग सी. ठीक है, सी और अदर सब्जेक्ट्स लाइक हमारे पास मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, ड्राइंग होंगे और अदर सब्जेक्ट्स होंगे. ठीक है, फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स द कोर सब्जेक्ट इज लाइक क्या है हमारे पास, सी लैंग्वेज. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी. ठीक, तो हमारे पास एज इम्पोर्टेंट होने वाला सी के हिसाब से, बट मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो अभी क्या है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो टेक्नोलॉजी है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन दैट वन और somebody is working on that one. Cloud से, DevOps से, backend, frontend, full stack, testing, EML, database, whatever, multiple things are there. तो हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें की कन्फ्यूजन आएगी कि अगर फर्स्ट ईयर में आप लोग, तो फर्स्ट यू शुड नो कि व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन द मार्केट, और मार्केट में क्या चल रहा है, कि क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं. ठीक है, क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं. ठीक है, दीज आर फ्यू व्हिच आई हैव मेंशन हियर इन द लिस्ट. ओके, व्हाट टू लर्न. ठीक है, ये आप लोग लर्न कर सकते हैं, और कुछ भी और भी एक्स्ट्रा हो सकता है जो वी कैन मिस. तो मैं यहाँ पे मिस भी किया हूँ बहुत सारी चीज़ें, जो इसको यहाँ पे एक स्लाइड में नहीं मेंशन कर सकता हूँ. ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या शुरू करना चाहिए. फॉर एग्जांपल क्लाउड है हमारे पास, क्लाउड है हो गया, या फिर डेवऑप्स हो गए, या फिर बैकएंड हो गया, फ्रंट एंड हो गया, या फुल स्टैक हो गया. तो मैं एक बार बेसिक आइडिया दूंगा कि फॉर बिफोर स्टार्टिंग, लाइक एनीवन नो अबाउट लाइक क्लाउड एंड डेवऑप्स? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट जो भी हैं, क्लाउड के बारे में सुना है, पर बादल जो दिख रहा नहीं, नो, अगेन साइलेंट. It's too long silence. Okay. Actually, I was trying something in cloud. Okay, I got one response. I have chosen a data science for my elective subject for 5th semester. Good.
and Mother Salama not so much. Okay, ठीक है. At least somebody is choosing related to AI side or data science side or whatever. तो अभी मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे AI एबल के अंदर भी हमारे पास डेटा साइंस भी हो गया, या डेटा एनालिस्ट हो गया, या फिर बहुत सारे हैं, डेटा इंजीनियर हो गए, बहुत सारा टॉपिक्स इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है. ठीक है, मैंने एक बस शॉर्ट में रखा है ताकि आप लोग को एटलीस्ट कुछ मालूम हो तो आप लोग भी बता सकते. ठीक है, ओके फाइन. तो अगर आप लोग बेसिक अगर देखना चाहें तो जो भी हमारे पास क्लाउड के साइड में क्या है कि वॉट एवर थिंग्स वी आर देयर, लाइक कोई भी हमारे पास प्रोजेक्ट है या कोई भी डेटा है, ठीक है, डेटा को क्या कर रहे हैं हम लोग, कहीं हम लोग मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है, मेंटेन कर रहे हैं जो हमारे पास क्लाउड एक स्पेस हमारे पास हो गया जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, जो हम लोग कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट वन प्लेस कि हम लोग जैसे अभी लैपटॉप में आपका कुछ डेटा है तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ लैपटॉप में आपके अपने सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं. सिमिलर हमारे पास क्लाउड के साथ ये है कि हम लोग कहीं भी उसे स्टोर करके वी कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, नॉट अबाउट द इंडिया ओनली, वर्ल्ड वाइड वी कैन एक्सेस. क्लाउड में मैं बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ. जैसे हमारे पास AWS है, सॉरी स्पेलिंग मिसिंग है, एज्योर है और GCP है. AWS हमारे पास इनका खुद का है, एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का है, और GCP गूगल, हमारे पास ये गूगल का है. ठीक है, तभी मार्केट डिमांड के हिसाब से क्लाउड एंड डेवॉप्स का जो भी मार्केट डिमांड अच्छा है. ठीक है, और डेवॉप्स में हमारे पास हो गया, डेवॉप्स बेसिकली क्या कहते हैं, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल. ठीक है, एज ए डेवलपमेंट से रिलेटेड भी नॉलेज होना चाहिए और ऑपरेशन से रिलेटेड, इन द सेंस कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोजेक्ट, एनीवन हैज क्रिएटेड एनी प्रोजेक्ट, एनीवन हैज क्रिएटेड एनी project? Yes, I has tried something. You have, yes, so you guys has created, and where you guys have deployed, has anyone deployed, कहीं पे deploy किया है, आपने रखा है कोड को? Virtual almost. तो फॉर एग्जांपल मानू कनेक्ट का वेबसाइट ही हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो भी क्या है, कहीं ना कहीं वो स्टोर है. ठीक है, अब क्या प्लेटफॉर्म यूज किया गया उसके स्टोर करने के लिए, आई डोंट नो. सो दे माइट बी यूजिंग क्लाउड और एनी अदर प्लेटफॉर्म. सो लाइक हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो सर्वर पे जो हम लोग डेटा को रखते हैं, वेबसाइट को रखते हैं. ठीक है, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग. तो जनरली क्या होता है कि एज ए बिग टेक कंपनी जितने भी हमारे पास हैं, डेवऑप्स जो भी होते हैं, डेवऑप्स टीम होते हैं जिनका काम ही होता है ऑटोमेशन, यानी जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट जो भी बन रखे हैं उसको एक ऑटोमेशन उसके लिए कुछ स्टेप्स लिखे जाते हैं, जो जब भी हम लोग कोड पुश करते हैं और पुश करने के साथ हमारे पास कुछ स्टेप्स रन होते हैं. ठीक है, जैसे स्टेप रन होते हैं और हमें उस चीज़ को डिप्लॉय करना होता है, तो वो क्या होता है, उसको वी मेक एज ए ऑटोमेटेड प्रोसेस. बेसिकली डेवऑप्स टीम मेक एज ए ऑटोमेटेड प्रोसेस टू डिप्लॉय समथिंग इन द सम इन्वायरमेंट. यूजली क्या होता है कि अब इन्वायरमेंट भी डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल डेव इन्वायरमेंट हो गया, टेस्ट हो गया, और NFT होता है, और फिर बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट में भी T2 T5 वट एवर इट इज, एंड लास्ट UT बोले या फिर प्रॉड बोले, UT होता है फिर देन प्रॉड. ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट वी डिप्लॉय समथिंग इन द dev environment and test the application. It is working fine or not. Okay, if it is working, then based on that we proceed our changes to next level, like test environment. There we usually provide our changes or application to tester to test that one. Okay, जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्शन में यानी कि फाइनली लाइव नहीं करते हैं. ठीक है, हाउ वी टेस्ट, फर्स्ट वी डिप्लॉय समथिंग इन द लोअर इन्वायरमेंट इन द सेंस नॉन प्रॉड, यानी कि प्रॉड में नहीं होगा, वो डेव में होगा या फिर टेस्टिंग इन्वायरमेंट में होगा. देन टेस्टर विल टेस्ट, एंड वंस दे विल टेस्ट, देन they will give the sign up like we have, okay, मैंने हर चीज टेस्ट कर दिया, it's working fine, then we can go live. So इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, usually most of the companies में nowadays it's happening. Few company only, like a startup in the sense a small level company only, they are not doing directly, they are deploying something and directly pushing into prod.
So most of the company is doing this one. Okay, the process they are using. तो हमारे पास DevOps टीम का यही होता है, काम होता है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी हम लोग डिप्लॉय पुश कोड लिखा हम लोगों ने, उसको प्रॉड लेवल तक यानी कि लाइव ले जाने के लिए कुछ हमारे पाइपलाइंस क्रिएट किए जाते हैं. पाइपलाइन के लिए फिर हमें कोड लिखे जाते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, बस एक बटन ट्रिगर करना होता है जिसके बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें क्या होगी, डिप्लॉय होगी और इसी तरह पुश होगा, डिप्लॉय होगा. हमारे पास सारे उसमें जो भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कंपनीज पॉलिसीज होंगे, सारे वो स्टेप्स मेंशन होते हैं कि हमारे उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये चीज़ें कोड हमारे पास है या नहीं है. ठीक है, वो सारी चीज़ें मेंशन होती है ऑटोमेशन. ठीक है, ये हमारे पास डेवऑप्स का काम होता है. और भी मैंने बेसिक दे दिया है क्योंकि आप लोग ये भी स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, इन द सेंस इफ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग. ठीक है, बात करें नेक्स्ट, तो जो टूल्स है आप लोगों ने देखा होगा, गिट एंड गिटहब, जो भी गिट आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, वर्जनिंग टूल. ठीक है, अभी अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में होंगे तो आप होप यू विल बी हैविंग आइडिया, और फाइनल ईयर में हो तो यू विल बी हैविंग आइडिया अबाउट द गिट एंड गिटहब. And Manu Connect has also created some video on it, so you can go through that one in the deep. ठीक है, so in detail, so what is this Git and GitHub? Basically I can say कि जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं कहाँ रखते हैं, where we keep the project. ठीक है, कि अगर हमने लैपटॉप में बना के रखा है, इन केस लैपटॉप क्रैश हो गया तो we cannot restore our project. ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि हमारे पास एक प्लेस होता है, ठीक है, रिपोजिटरी होती है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोड चेंजेस को रखते हैं, या जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो हम लोग वहाँ पे रखते हैं. ठीक है, इसी तरह टूल्स है डेवऑप्स के लिए हमारे पास ये सब जो हमारे पास, अगर आप AWS और क्लाउड के साइड, क्लाउड और डेवऑप्स के साइड में जाना चाहते हैं तो ये टूल्स है, आपको इस चीज़ को आप लोग फॉलो कर सकते हैं. डॉकर इन द सेंस लाइक हमारे पास क्या होता है, कंटेनर. जैसे हमारे पास क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल एक बना बनाया प्रोजेक्ट हमारे पास है. ठीक है, और बना बनाया प्रोजेक्ट को हमने एक डब्बे में रख दिया. ठीक है, या समथिंग वी कैन से, सो वी आर यूजिंग बैग. ठीक है, when we are going to college, so we will be having notebook, book and both water bottle and other things are there, so we are keeping inside the bag. ठीक है, तो एवरीथिंग हमारे पास क्या है, बैग के अंदर है, तो वो हमारे पास क्या है, एक तरह से कंटेनर हो गया, एग्जांपल से बताना चाह रहा हूँ. ठीक है, और सेम बैग को हम लोग कहीं जाके रख रहे हैं. तो ठीक है, अभी डॉकर इसी तरह क्या है, हमारे पास एक जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर, यानी कि स्क्रैच से लेकर इंटीग्रेट, whatever tools we are using, which version we are using, so we are keeping everything inside the docker and we are deploying it. So जो भी हम लोग इसे लाइव कर रहे हैं, तो क्या होता है कि पहले क्या होता था एक्चुअल में, ये डॉकर आने का रीजन क्या है एक्चुअल में, कि पहले हम लोग you might heard, like before going to this one, like let me tell you one thing, कि हमारे पास क्या होता था कि पहले हम लोग प्रोजेक्ट बनाते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बनाते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू आर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट इन जावा और .NET और PHP व्हाटएवर इट इज. ठीक है, सो वी माइट बी यूजिंग लोअर वर्जन. फॉर एग्जांपल अभी अगर रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट 19 और 20 व्हाटएवर इट इज, आई एम नॉट श्योर एक्जेक्टली, तो 19 इज देयर. सो अगर हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया 19 में, ठीक है, अगर हमें सर्वर, हमने क्या किया यहाँ पे 19 में क्रिएट कर लिया और सर्वर पे हमारे पास अभी ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन आ रखे हैं. ठीक है, तो क्या किया, फॉर एग्जांपल वहाँ पे 20 है या फिर 21 है या लेसर वर्जन है. ठीक है, तो क्या होता है कि क्या वर्जन का मिसमैच का इशू हो जाता है. कोई पैकेजेस जैसे होते हैं कि जो हमारे पास सर्वर में सपोर्ट नहीं करते. ठीक है, तो क्या होता है, सर्वर पर सपोर्ट नहीं करने की वजह से क्या होता है कि फिर आपका प्रोजेक्ट जैसे ही लाइव जाता है, वंस इट गो लाइव, तो क्या होता है, इशू आ जाता है कि ये कुछ कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट ब्रेक होना शुरू हो जाता है. तो डॉकर क्या करता है कि जो भी हमारे पास एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर जिस वर्जन में देना चाहते हैं, सेम वर्जन वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इट विल टेक केयर इन द सर्वर. ठीक है, वो सेम वर्जन वो वहाँ पे इंस्टॉल कर लेगा ऑटोमेटिकली. देयर विल बी नो चांस टू ब्रेक द एप्लीकेशन. मतलब जो अपार्ट फ्रॉम लाइक बग नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए, मीन्स द थिंग इज लाइक कि आपका प्रोजेक्ट फुली, आपका जो आपने बनाया है लोकल में, वही चीज़ वहाँ पे सेम आपको दोबारा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैनुअली कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी पैकेज आपका अवेलेबल होगा. ठीक है, the next thing is like we should have some knowledge of like the next basics if you are going inside the website. Okay, next I will go this
This I will take it later, low and high package. Okay. Before going to this one, so any question in that one? Like, did you get any idea about the DevOps things, or what should I learn at DevOps or cloud basically? Hello, Vishal there. Yeah. I have a question. Please. Like in today's IT sector are going too fast. Like everyone will choose AI or machine learning, data science. So I don't know, like if you are first year student again, what skills would you pick in 2026? Okay, so basically your question is what skill should I choose in the 2026, right? Yeah, Understood. based on the market. Correct. Yeah, so I will come to that point. Okay, so just I will note it down. So Ryan has skills. Okay. That's the reason I asked in the starting. So what all skills you have guys have started? Anything you have started or not? Based on that, I will proceed for that. So okay, then I will come to you at last. Okay. Anyone have any question? Any other question? No. Okay, then let me go ahead. Okay. Now we discuss about the DevOps and cloud basic idea, and now I'll go with the full stack development. Okay. So one question is there: what is web development? Exactly, if somebody is doing some work web development, so what you guys actually understand about the web development? क्या समझते हैं आप लोग मतलब वेब डेवलपमेंट somebody is saying कि मैं वेब डेवलपमेंट कोर्स कर रहा हूँ, so how you will say to someone कि I'm doing the web development course? Any idea? Hope everyone knows like who is already making website. Any other? Come on, let's fast. Okay, so making website, fine, good enough. And okay, अब बात आती है कि वेब डेवलपमेंट की कोर्स जब किया जाए फॉर एग्जांपल, सो वी विल बी हैविंग मल्टीपल थिंग. ठीक है, अब लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द वेब डेवलपमेंट. ओके, ठीक. जब वेब डेवलपमेंट की बात आती है, सो वी विल बी हैविंग मल्टीपल थिंग टू डू, मल्टीपल टेक्नोलॉजी टू डू द वेब डेवलपमेंट. ठीक है, अब वेब डेवलपमेंट में जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल वी डू हैव simple, just I will take HTML, let me write here. We do have HTML, CSS, Bootstrap, whatever it is. Okay. Then we do have React, we do have Angular, we do have Vue, and we do have other ones. So like we do have multiple ones. Okay. So which one to choose? Again, somebody will be saying, so I want to do the web development. So before going to the web development, you should know sort of what to select. Okay, तो हमारे पास क्या है, बेसिक जो हमारे पास होना चाहिए. For every other framework or library, we should have knowledge on this one. Basic idea of should HTML, CSS, and JavaScript. You can say also JS also. Okay. So why it is required? This is the main part. Basically, main thing is there to start the web development. Okay. Or React, and we do have one thing is Next.js also. The Next.js is library of this React.js. Okay. So everywhere we are going to use HTML, CSS, and JavaScript concepts. Some of the case we are using the Tailwind CSS and other CSS frameworks are there, but similar to CSS only. But if we'll be having some idea on the CSS, then it will easy to grab that another framework. Okay, हम लोग दूसरा फ्रेमवर्क को आसानी से सीख सकते हैं. ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे पास कोर जो है बेसिक इसका आना चाहिए स्टार्ट करने के लिए. ठीक है,
then you can decide, ठीक है, do you want to start React or Angular or others, ठीक है, क्या पे start करना चाहते हैं, ठीक है. So depends on like how expert you are in the JavaScript, or we do, now we are also using one programming language there, TypeScript. So TypeScript and JavaScript. Okay, these are two things. So we can use JavaScript with the React and Next.js. Okay, and TypeScript we can also use with React and Next.js and Angular. Okay, so just take example with React and Angular only. So we can use TypeScript with React and Angular, JS with React only, not with Angular. Okay, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसका JS पर पूरे अच्छा कमांड है. अब टाइप स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि लाइक हाउ यू आर डिफाइनिंग द टाइप, ठीक है. Like you can say you have already learned the C++, Java. So these are the type shape language. Type shape in the sense whatever we are declaring, like when we are going to store something, some value. So we are creating the variable and we are defining the type. In Python you can also do it. In the Python we don't declare the type, but by default based on the value you take the type, ठीक है. ये क्या है, टाइप शेप होता है. इस तरह से हमारे पास टाइप शेप क्या है, टाइप शेप. वी प्रोवाइड द टाइप, बेस्ड ऑन द टाइप वी विल बी ओनली गोइंग टू प्रोवाइड द डेटा, विच टाइप ऑफ डेटा इट विल. ओके, तो ये बेसिक हमारे पास है वेब डेवलपमेंट के लिए शुरू करने के लिए, ठीक है. अब जब आप सेलेक्ट कर ले विच वन टू, जब आपने सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल यू हैव ऑलरेडी लर्न HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है, बेसिक पूरा आपने. अगर आपको फुल स्टैक में जाना है देन यू कैन स्टार्ट विद दैट वन, ठीक है. द सेकंड थिंग इज व्हाट टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टार्ट, ठीक है. अब बात आता है कि अगर एज ए फुल स्टैक जाना आपको, देन अगेन वन क्वेश्चन इज द फुल स्टैक. इफ यू आर प्लानिंग टू गो विद द फुल स्टैक, ठीक है, फुल स्टैक में क्या कर सकते हैं, देन जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ मर्ज, एवरीवन अवेयर अबाउट दिस, ठीक है. MongoDB, ठीक है, Express.js, React.js एंड Node.js, ठीक है. API के लिए हमारे पास Node.js यूज हो रहा है, ठीक है. हमारे पास और React और Express.js हमारे पास, इसी तरह हमारे पास MongoDB डेटाबेस के लिए, ठीक है. अभी बात आता है कि अब हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया कि हमें वी आर गोइंग टू डू द मर्न, और जस्ट टेक एग्जांपल फॉर मर्न फर्स्ट. अगर हमने सेलेक्ट कर लिया कि मर्न लेक करना है तो हमें क्या करना पड़ा, व्हाट टू स्टार्ट फर्स्ट. तो जब भी हम लोग कोई चीज़ स्टार्ट करें देन वेयर टू स्टार्ट, फर्स्ट स्टार्ट विद द इजीएस्ट थिंग. क्या हमें करना चाहिए, स्टार्ट, ठीक है. वन मोर क्वेश्चन, लाइक आप लोगों ने जैसे up to somebody has completed already third year and who will be entering into the fourth year. अब तक लोग आप लोगों ने ऐसे, आप लोग का सेमेस्टर वाइज क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है. आप लोगों ने कुछ ऐसा सोचा है कि वी शुड क्रिएट समथिंग यूनिक और बिग प्रोजेक्ट. एनीवन हैड हर्ड, एनीवन थिंक, किसी ने सोचा ऐसा कि मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करना और यूनिक भी रहे जो हमारा सबसे अलग हो, डिफरेंट हो. एनीवन? No. Okay, fine. So if you have not heard thing, then what I will suggest, go with a small thing, very small thing. No need to worry about in a 1 day or 10 day I'll be going to create a very big website. Okay, don't think like that. So start with a small one, like some similar form, student registration form. Then you can think about another. Create by model, like create something with एक मॉडल पकड़ ले आप, छोटा सा मॉडल पे छोटा मॉडल, देन स्टार्ट एडिंग अनदर मॉडल इन दैट वन. आप लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ any programming or anything. If you are choosing anything like to going to the market level, like, ठीक है. Just I'm saying the full stack, ठीक है. अब again question एक आता है जैसे कि AI is already doing all the things, why to choose full stack development, how it will go for the after doing this one. For example, if you have already started full stack, hope everyone heard AI is doing multiple things. आप लोगों ने सुना है ना कि AI is writing the code, no need to worry about the developers.
ठीक है, सॉरी, so we have to go with the other speaker also. अगर आप लोगों ने सुना है जैसे कि AI काम कर सकता है, ठीक है, AI काम कर रहा तो क्या करना पड़ेगा फिर, ठीक है, AI is working. I'm also not using single line of code. अगर मैं 102 लाइन कोड लिख रहा हूँ, but with the help of AI. But when we are going to write something, if AI is generating code, who will verify? You should only, developer should only verify that one. Developer को ही सिर्फ verify करना है, तो then that's the reason you have to learn that one. You should have idea, basic understanding, deep understanding, then only. Otherwise AI will write anything, you can just blindly you can push that one. So make sure you should learn that one. If you want to learn, अगर आपको learn करना तो आप learn कर सकते हैं, इसमें आप जा सकते हैं आगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि AI के साथ आपको आगे जाना है, but you should have deep knowledge on that. Okay. So question session can we take later, or any other speaker is going to talk? I do have one or two topic, then I can take question and answer. Yeah. Basic. Yes, I take. Okay, so let me go ahead fast. Okay, so if somebody is there in the final year, and or if you are going to final year, so there's many things are there. So how our resume should be, and how we can get a call from the company. Okay, this is a most important thing. So when we are planning for any job, okay, and we are preparing for any job. So first, your resume should be in the good format, and second thing, what skills you have added. When you are going to add skills in the resume, make sure your project should in the GitHub. आपका project GitHub पे होना चाहिए. Then you can provide the link, and do not add multiple skills which you don't know. ठीक है, अगर आपको skills नहीं आता बहुत सारा तो नहीं add करें. Unnecessary, you have written C, C++, Java, multiple things, Python, and multiple programming languages, but you are not expert in any one of them. Then, if you are expert in one or two, then write only one or two only. Okay. And two, as I'm going fast, so what you can do, so update the profile on daily basis before 8 morning. And what I can say, so make a connection in that field. Like for example, if you are searching for Python or data science or whatever it is, so try to make a connection on LinkedIn with related to data science person and where you are looking for example, if you are looking in Hyderabad, try to make connection to HR in Hyderabad also. So why? Because if some post will be coming related to your job, you will be easily get the details and ask with that people also. So is there any opening in your company? It will helpful for you. So there are many things are there. So which personally you guys can connect me on the LinkedIn, or you can ask with me, so I can guide you in that one. Okay. So there are multiple useful platform. You might be already knowing that one. Okay. Okay. I think Ryan, so it is okay to take your question at last once another speaker will complete. Okay. So Yeah, no problem. okay. Thanks everyone. So we can take the question. So we can hand over to Imran, so you can ask another speaker to go ahead. Yeah. Thank you, Dilsar. Thank you, Mr. Nisab Ashraf, for sharing your valuable experiences and insight with us today. Now let's move on to our next speaker is MD Ibrahim sir. He completed his BSc in Information Technology from Jamia Hamdard and MCA from Manu, and currently he is pursuing his PhD from Manu, and his experience as a subject matter expert at Tech India. So we are excited to learn from their experiences and insights today. So Ibrahim sir, please continue. Am I audible to all of you? Yeah, yes, sir. Yeah. Assalamu alaikum. Good evening to all of you. Walaikum Salam. Good evening.
I'm sharing my screen that you can see. That is it visible to all of you? Yes, it is visible. Okay. That already she introduced myself that I am pursuing PhD from Manu in computer science and I am in first year. And today I will discuss about higher education and what are the opportunities that we have. Many of you maybe interested in higher education and interested in teaching fields and a part of tech industry. How many of you interested in higher education? Can you raise? Okay, let's proceed our presentation. That we have several opportunities in India and abroad that we can proceed with them, and we have to follow some critical pathways for these opportunities, and many national and international scholarship are also there. That if we don't know about these how to gain these opportunities, that we cannot afford it. Firstly, why should move for higher education? Higher education help us to gain the deep knowledge of a selective subject in a like our semester subject that we only go through the basic knowledge about it and only prepare for a semester exam. But we don't know about the deep knowledge of this of the particular subjects or particular yeah, higher education. That if you have interest in a particular topic and a particular subject, you can go for it. That if many students have a research oriented interest, that they can go for it. And if you are going for higher education, many career options are there. Firstly, we know about in our university, we seen that the assistant professor, they have, you can say here in Manu, if you have any problem in English that I can proceed in Hindi also. I think ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि हम दोनों साथ में करें. अच्छा अच्छा ठीक है, दोनों मिक्स करके करते हैं. तो ये मकसद ये है कि करियर ऑप्शंस बताना हायर एजुकेशन में क्या क्या है. तो अभी एक इंडस्ट्री को बहुत अच्छा बताया दिलशाद भाई ने, कैसे उसमें प्रोसीड कर सकते हैं और कैसे जाया जा सकता है. बहुत अच्छे तरीके से बताया जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए. लेकिन ये है कि अगर बहुत सारे लोगों का है कि टीचिंग में जाना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप यू कैन प्रोसीड विद देम आल्सो. You have the two options. You can go for tech also and assistant professor things also. And ये मैं बता रहा था कि मानू में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है, यहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जो भी हमें पढ़ाते हैं मतलब लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं एक तरह से देखते हैं. तो लेकिन वैसा भी नहीं, वो लोग तो वैसा तो नहीं बनना है जैसे वो लोग बिल्कुल ही पढ़ा नहीं रहे हैं. जो भी कर रहे हैं वो तो सब देखते हैं, सब लोग जान रहे हैं कैसा क्या चल रहा है. तो ठीक है, वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ है. आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, PSUs ज्वाइन कर सकते हैं गेट के थ्रू. पोस्ट डॉक्टरल भी जा सकते हैं. अगर PhD के बाद भी जाना है, अप्रोच से करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं. मेनी गवर्नमेंट
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। अगर रिसर्च फील्ड में जाना है तो उसके लिए डिफरेंट फेलोशिप्स प्रोग्राम्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के पास। Firstly, you all know about GATE exam, that in BTech students and MCA students also know about the GATE exam. It's a graduate aptitude test, and you can go for it for MTech and PhD also. And the benefits of GATE, you can get admission in IITs, triple IITs, and many PSUs that like IOCL, ONGC. बेनिफिट्स दैट इन IIT, जैसे अगर IIT में आप एडमिशन लेते हैं तो IIT में क्या है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है प्लेसमेंट की और करियर, जो आप यहाँ पे जितना मेहनत कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मानो में क्या बहुत बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं जो BSc सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेसमेंट इतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट बेस्ड तो छोड़ दीजिए, ये भी नहीं आ पा रहे, नॉर्मल कंपनीज भी नहीं आ पा रही है, सर्विस बेस्ड भी नहीं आ पा रही है। तो ये ऑप्शंस वहाँ पे बढ़ जाते हैं IITs में। अगर बहुत सारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए होंगे बीटेक में, वो बहुत पॉसिबल है कि वो IITs के लिए तैयारी कर रहे होंगे, JEE की तैयारी करके आए होंगे, तो मे बी उनका किसी वजह से नहीं हो पाया IITs में या NITs में, मे बी उनका ड्रीम कॉलेज रहा होगा। तो एक मौका और भी है आपके पास कि आप गेट के थ्रू जा सकते हैं। थर्ड ईयर से ही आप एलिजिबल हैं मतलब गेट देने के लिए, और अगर कोई फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स है, तो वो अभी से ही अगर शुरू करें तो बहुत अच्छा होगा उसके लिए कि अच्छा स्कोर गेट में कर सकता है और IITs NITs में जा सकता है, और IISc में भी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और उसके बाद PSUs तो हैं ही, डायरेक्ट PSUs में, लेकिन ये PSUs में और किसी भी मतलब इसमें IITs में भी जाने के लिए उसके बाद इंटरव्यू देना होगा, सिर्फ गेट के स्कोर से नहीं होगा, इंटरव्यू के बाद ही आपको सिलेक्शन होगा। उसके बाद फिर आप MTech वहाँ से करके डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, और MTech के बाद आपके पास दोनों रास्ता है कि आप टेक में भी जा सकते हैं और इधर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो उधर भी जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, मतलब कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं उसका, गेट के जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके कंप्यूटर साइंस के, जैसे आप जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी बेसिक कोर सब्जेक्ट्स हैं, उसकी डेप्थ स्टडी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी होगी। तो इसको फॉलो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर से ही शुरू कर सकते हैं आप, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का वेट ना करके शुरू से ही स्टार्ट करें, तो जाकर गेट लेवल का आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर गेट की प्रिपरेशन हो जाती है तो ऑटोमेटिक है ये UGC नेट, ये नेट तो बीटेक में भी दे सकते हैं, पहले नहीं था ये, बीटेक के बाद डायरेक्टली PhD करने का नहीं था, लेकिन अब तो UGC नेट डायरेक्टली बीटेक के बाद भी दे सकते हैं। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ये भी आया है। तो ये नेट का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करता है NTA, ये मास्टर्स के बाद मेनली एलिजिबल हैं जो भी MTech स्टूडेंट्स हैं, और MCA वाले भी दे सकते हैं ये नेट का एग्ज़ाम। इसमें आपको एक फेलोशिप है, उससे आप PhD कर सकते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो इसमें मंथली बेसिस पे आपको फंड गवर्नमेंट की तरफ से फंड किया जाएगा PhD को परस्यू करने के लिए। और यहाँ पे मानो में भी आपको कुछ नॉर्मल नॉमिनल अमाउंट स्टाइपेंड मिलता है कि आप नॉर्मल अपना एक्सपेंस बियर कर सकते हैं। तो ये अप्रॉक्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप आई थिंक 1 to 2 ईयर 35,000 और HRA मिला के 42 या अप्रॉक्स कुछ अमाउंट मिलता है ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसके बाद इसकी कुछ इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो बेसिक्स आपके मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब 10 सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, लेकिन बहुत टफ नहीं है पेपर 1 की प्रिपरेशन। और पेपर 2 जो है कोर सब्जेक्ट्स आपके, जो कंप्यूटर साइंस के 10 और 12 सब्जेक्ट्स हैं, जो AI, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी है गेट ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल अगर पूछें तो यूजीसी नेट का इजी है, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न है 100 मार्क्स पेपर 1 है और 200 मार्क्स पेपर 2 है, जो 2-2 मार्क्स कैरी करता है, मतलब 150 क्वेश्चंस है, 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के हैं और पेपर 2 के 100 क्वेश्चंस। तो अगर किसी को हेल्प चाहिए होगा तो फर्दर मैं मतलब आगे गाइड कर सकता हूँ उसमें कि कैसे प्रिपरेशन करना हो, जो भी अगर मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, एमसीए वाले हैं और एमटेक अगर एमटेक के हैं तो ये पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 में मेनली रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग। टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत के 5 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट है। Here we have different national scholarship programs. यूजीसी तभी बताया, यूजीसी फेलोशिप है, सीएसआईआर भी इसी टाइप का है, इसका भी ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है लेकिन एग्जाम पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। इंस्पायर फेलोशिप है, एआईसीटी स्कॉलरशिप है, तो डिफरेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट्स की, और गवर्नमेंट्स की इसके अलावा भी कुछ स्कीम्स आते रहते हैं, मतलब गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट में, जैसे रिसेंटली एक आया था, मैं सर्च करके बताता हूँ, एडॉब फेलोशिप, एडॉब की तरफ से, तो ये इंटरनेशनल है लेकिन ये इंडिया में एआई के रिसर्च को ये सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आपका एआई रिलेटेड रिसर्च टॉपिक है, जैसे कंप्यूटर विजन, एनएलपी, ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन एंड अदर डोमेन्स, दीज आर दी टॉपिक्स। इस ये टॉपिक में से किसी भी टॉपिक्स पे आपका रिसर्च फील्ड है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें अमाउंट क्या है, 12 मंथ्स के लिए आपको ये मिलेगा, और आपका एटलीस्ट 1 ईयर लेफ्ट होना चाहिए, 1 से ज़्यादा लेफ्ट होना चाहिए, मतलब पीएचडी कंप्लीट नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, और ये अमाउंट है 12 लाख का फॉर 12 मंथ। तो ये एक बार में क्रेडिट हो जाएगा और आपको 12 मंथ के लिए। तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है एप्लीकेशन के लिए, जैसे कोई भी स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट का या फिर प्राइवेट का, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। क्या है इसके रूल्स, जैसे लेटर्स ऑफ, पहले तो आपका सीवी होना चाहिए। सीवी भी ऐसा नहीं है कि वो टेक फील्ड का सीवी अलग होता है, और यहाँ पे जब आप रिसर्च फील्ड में आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में सीवी आपको बनाना होता है। अगर आपके कुछ पेपर्स पब्लिश हैं, रिसर्च पेपर आपके मास्टर्स में या फिर किसी बेस में आपके फील्ड में पब्लिश है, तो वो आपको मेंशन करना होता है सीवी में। और आप फिर रिसर्च स्टेटमेंट, जो आपके टॉपिक आप जिस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, वो आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए उनको, जो भी जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इसके लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होगा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है कि आपके जो सुपरवाइजर हैं या फिर आपके कोई जानने में प्रोफेसर है, उनके एकेडमिक्स और उनका रिसर्च बहुत अच्छा है, मतलब जानते हो कि उनके रिसर्च फील्ड में, तो उनसे आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आप अगर लिखकर अपने लेटर पे देंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर उसके बाद क्या है कि जब ये एक शॉर्ट लिस्ट होगा, ये उसके बाद इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का, उसके बाद जो भी फाइनलाइज होंगे स्टूडेंट्स, उनको ये अमाउंट मिलेगा। तो ये एक फेलोशिप हुआ। ऐसे ही इसी तरह का बहुत सारा फेलोशिप, जैसे अभी रिसेंटली इंडिया एआई फेलोशिप, ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुआ है। तो ये भी एक अच्छा अमाउंट आपको पर मंथ हायर एजुकेशन के लिए देते हैं, 70,000 आई थिंक एटलीस्ट देते हैं ये। तो ये एआई को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का ये मिशन है। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट की जिसके थ्रू एआई को प्रमोट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट, ये तो नेशनल लेवल पर हो गया। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जिसके थ्रू जा सकते हैं। तो यूएसए का है ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, ये यूके का है चेविनिंग स्कॉलरशिप, डिफरेंट स्कॉलरशिप है। इसके लिए यही है की पॉइंट्स के इसको लेने के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पहले तो आप अच्छे से आपका जो रिसर्च प्रपोजल है
और रिसर्च स्टेटमेंट है वो क्लियर होना चाहिए। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जैसा कि पहले बताया कि आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कोई अच्छे प्रोफेसर्स के लेटर पैड पे होना चाहिए जिनका रिसर्च बहुत अच्छा हो, और फिर आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, जो सामने वाला उसको अच्छे से समझ में आए। और इसमें क्या कवर होता है फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर, ये पूरी आपकी ट्यूशन फीस इसके अंदर आ जाता है, और ये मंथली बेसिस पे कुछ अमाउंट भी पे करेंगे आप अगर बाहर जाते हैं तो आपका एक्सपेंस वहाँ पे भी करेंगे। और फिर ये कहीं आपको बाहर कोई कंट्री में जाना है कॉन्फ्रेंस के लिए तो वो भी आपको पूरा वो फंड करते हैं। तो इसके लिए आप कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहला है कि आप रेगुलर बेसिस पे यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स को फॉलो करते रहें, और आप प्रोफेसर्स जो हैं इस फील्ड में वो काफ़ी वो एक्सप्लोर करते रहते हैं, वो भी अपने मतलब लिंक्डइन प्रोफाइल पे और इस पे वो शेयर करते रहते हैं, वो उस पर विजिट करते रहें, और स्कॉलरशिप पोर्टल्स जो है डिफरेंट उसको विजिट करते रहें रेगुलरली बेसिस पे। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। और ये जैसे बताया कि इसमें अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला तो आपको रिसर्च में इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए, और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट दी एकेडमिक जर्नी बहुत अच्छा होना चाहिए। 10th 12th और ग्रेजुएशन ये सारे इसमें अच्छे CGPAs और परसेंटेज होने चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, और ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बारे में यहाँ पे बताया। तो कंक्लूज़न ये है कि अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं मतलब हायर एजुकेशन में, तो आपका यही रोड मैप है कि गेट एग्ज़ाम्स, UGC नेट, ये इंडिया में बेसिक एग्ज़ाम्स हैं जो जिसके थ्रू आप आ सकते हैं हायर एजुकेशन में। और ये कुछ अभी से ही प्लानिंग, अगर प्लानिंग है किसी का अगर हायर एजुकेशन में, तो अभी से माइंडसेट उस तरह का बनाना होगा और अवेयर रहना होगा कि कौन सी चीज़ कब चेंजेस आ रही है, क्या चीज़ क्या चल रहा है मार्केट में, और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन। एनीबॉडी हैव क्वेश्चन रिलेटेड गेट के रिलेटेड और किसी भी चीज़ के रिलेटेड, यूजीसी नेट के रिलेटेड? Yeah, all can can ask question from both the speaker. आप जिनको पूछना हो दोनों से पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? इब्राहिम भाई एक क्वेश्चन मेरा था, हाँ, डिपार्टमेंट में जिसका नेट JRF या PH कुछ भी नहीं निकलता है तो उसको डिपार्टमेंट की तरफ से कितना मिनिमम अमाउंट मिलता है टू कंटिन्यू PhD? जैसे क्या है ना कि यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम होता है वो आप अगर देते हैं तो उसमें 3 मतलब वो है, एक ओनली PhD है अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो ओनली PhD, एक यूजीसी नेट, और लास्ट है ये जो सबसे अपर लेवल का है ये JRF। ये तीनों का कट ऑफ अलग अलग होता है। तो अगर आप JRF निकालते हैं तो वो तो आपको अमाउंट मिलेगा, लेकिन अगर आप नेट है या फिर ओनली PhD है या कुछ भी नहीं है तो एक अमाउंट मिलता है जो 8,000 का वो स्टाइपेंड मिलता है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यही अमाउंट है, और बाकी अगर इस बीच में अगर आप PhD के दौरान में भी अगर आपका JRF क्वालिफाई होता है तो वो फिर अमाउंट स्टार्ट हो जाएगा जिस डेट से आपका क्वालिफाई हो उस डेट से। ठीक है, ये Yeah, Uzafa, if you want to say something. Okay. Thank you, Imran. Okay, so now we are concluding the session. So before concluding, we have one more question in the chat. So the question is: currently, I completed first year. What is the roadmap of GATE preparation? So someone like completed first year, so he wants to know the preparation roadmap. Yes. you completed first year in MCA, na? Okay. Firstly, you have identify your weak and strength in a particular subject. जैसे तुम्हारा
सब्जेक्ट्स क्या क्या था, जैसे MCA फर्स्ट ईयर में ऑपरेटिंग सिस्टम था, DBMS था, डेटा स्ट्रक्चर था। तो जो सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में पहले हो चुके हैं तो उनको गेट लेवल के लिए तो बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं यूट्यूब पे, लेकिन अगर अगर अच्छे एक प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करना है तो जा सकते हो फिजिक्स वाला के गेट वाला जो है उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो उसमें वो पूरा प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन है। बहुत मैंने भी किया है और मैं भी गेट क्वालिफाई हूँ, तो बता सकता हूँ कि फिजिक्स वाला ही के थ्रू मैंने भी किया था। तो बहुत अच्छा प्रॉपर वे में है वो, वहाँ पे जो टीचर्स हैं ये हैं मतलब बहुत अच्छे हैं, क्वालिफाइड हैं, सारे IITians और ISC बेंगलोर से और ये सब क्वालिफाइड है। तो एक प्रॉपर तुम्हें एक चैनल फॉलो करना होगा, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं उसको पहले फोकस करो, जो भी फर्स्ट ईयर में था, और सेकेंड ईयर में भी शायद और भी सब्जेक्ट्स आएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स जो अभी फर्स्ट ईयर में मतलब गेट के सिलेबस में है वो आएंगे। तो यही है, ये स्टार्ट कर सकते हो। और फिर ऐसे एक RBR सर भी हैं, उनके अभी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं जो यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है, तो वहाँ से भी ये स्टार्ट कर सकते हो यूट्यूब पे जाकर। RBR सर रविंद्र बाबू करके हैं, वो काफ़ी अच्छा उनका कंटेंट है। Okay, sir. Okay, thank you so much. Okay, so do you have any questions? So like unmute yourself if you have any questions, anyone. 1 minute. So I think Rayan has asked some question regarding some roadmap of what you have asked. Yeah, I have a question. Uh-huh. What skills would you focus in 2026? Like if you are an first year student like you? Okay, so basically in which year you are now? कौन से year में आप? I'm currently in third year. Third year. This question was asked by a fresher. Okay, basically question for freshers only, so who is in the first year, right? Like there's two things are there. Like अगर आप already crossed the third year or second year, ठीक है? Then if you have not started anything, अगर आपने कुछ भी पहले से कुछ भी प्रिपेयर नहीं हो रखा, सिर्फ only एग्जाम प्रिपेयर किया और एग्जाम दिया, ठीक है? Then my suggestion would be go with full stack or any AI related courses, okay? So which you can complete within the 6 month or 9 month, okay? At last time में आपको क्या होना चाहिए, वो हरी नहीं होना चाहिए कि we reached into the final year and only one semester is left. तो क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर करोगे या फिर जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे. So we already know there is no placement, there is less placement in the Manu, ठीक है? और तो आपको इस हिसाब से प्रिपेयर होना पड़ेगा. अगर आप ऑलरेडी इफ यू आर इन द फर्स्ट ईयर तो आप क्या करें, फर्स्ट स्टार्ट बिल्डिंग योर लॉजिक्स, ठीक है? अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप DSA पहले स्टार्ट कीजिए, पहले एक आप लॉजिक बिल्ड कर लीजिए किसी भी तरह से, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट डिपेंड ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको लॉजिक आना चाहिए, वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करेगा. देन आप लेटर यू कैन स्टार्ट अनदर थिंग्स लाइक ये कर सकते हैं. Like मेरा क्वेश्चन था वो फर्स्ट ईयर की तरफ से. Like आप अगर फर्स्ट ईयर में अभी रहते हैं तो आप कौन से स्किल चूज करते हो? मैं तो अभी थर्ड ईयर में हूँ. हाँ, क्या स्किल चूज करते हैं इन द सेंस, मतलब जैसे क्या स्टार्ट करना है, जॉब है, डेटा साइंस है, AI स्किल्स है. ठीक है. तो मैं फर्स्ट ईयर में रहता था, तो देन मैं भी ये सारी चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं करता. इसके लिए मैं बेसिक ओवरव्यू जाता. फर्स्ट मैं क्या करता कि मैं अपने लॉजिक बिल्ड पे फोकस करता, ठीक है? अगर लॉजिक बिल्ड पे फोकस करता देन आई कैन स्टार्ट कंप्लीटली ऑन दैट वन. अगर मेरा इंटरेस्ट है डेवलप साइड में देन विल फोकस ऑन दैट वन. क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग हमेशा कहीं ना कहीं हर टेक्नोलॉजी के साथ, हर जॉब के साथ वर्क करेगा ये. अच्छा, मैं डेवऑप्स या फुल स्टैक जो भी है Thank मैं you. मतलब ये इसके बाद स्टार्ट करूंगा फिर. Okay, so thank you so much. Thank you. Okay, any more questions? Okay, I think
think we don't. ये इम्तियाज का कुछ क्वेश्चन है. बीटेक सिविल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग गेट एग्जाम. सिविल से है तो सिविल का तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन यही है कि एक प्रॉपर जो भी उसका सिलेबस है आप उसको पहले गो थ्रू कर लीजिए अच्छे से, और एक प्रॉपर जो रोड मैप है या यूट्यूब चैनल है उसके रिगार्डिंग जो सिविल एक्सपर्ट्स हैं उसमें जो गेट का मतलब कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब पे, तो उसको फॉलो कीजिए अच्छे से. और अभी से ही मतलब सेकेंड ईयर से ही आपको मतलब सीरियस होके करना होगा, क्योंकि गेट बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो बहुत इजी में नहीं ले सकते हैं इसको. तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही इसको, और मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट है कि आप यूट्यूब से पेज पढ़िए और एक पेड मॉक टेस्ट ले लीजिए. बहुत सारा अवेलेबल है, ये मेडिजी का है और ये RBR सर का भी है ये टेस्ट सीरीज. तो आप मतलब सैटरडे संडे वीकेंड पे टेस्ट दीजिए उसका, तो इससे अपना इवेल्युएशन भी होगा कि आपको उससे सब्जेक्ट, जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया अच्छे से तो उसको फिर कितना आपको आया उसका गेट लेवल का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए उससे. मतलब वो मिक्स क्वेश्चंस बनाते हैं फिर, वो जो मॉक टेस्ट होता है तो मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं मतलब सेकेंड ईयर से. तो सिविल हो या कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट्स में कंपटीशन बहुत टफ है गेट के, क्योंकि बहुत बच्चे अपियर होते हैं और बहुत सारे लोगों का निगेटिव में ही मार्क्स आता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग बहुत इसका टफ है. ठीक है. Okay, so thank you. Okay, so as sir said, that it doesn't matter like which like domain you choose or preparing for the gate or anything. Like you have to do hard work, right? So consistently do hard work, guys. Okay, so we are concluding the sessions, and if you have any more questions, try to connect with our mentors over LinkedIn, and we have a chat sections in our website as well. Sorry to disturb. Yeah. Question. Okay. Sorry, Ram? Hello. Yes. I have a question. Yeah, please. Can I ask? Yeah, sure, please. Richard, right? Yeah, go ahead. I'm learning data science. So, what kind of project recruiter will employ? Do you have any idea about data science? Basically, I don't have much idea on this one, so I can suggest one thing. So, if you have started or means you are planning to start. Yeah, I've already started. Okay, then if you have already started, then not sure. So I can tell you, I can check with my colleagues who is already there in the data science. I can tell you then. Okay, I'll connect with you. Okay. If somebody is planning to start, then I can suggest one thing. So their mathematics, probability, and statistics must be strong. Then only this should start. Thank you. Okay, sir. Thank you. Any more questions? Okay, so I think we don't have any questions. So yeah, if you have any questions, just try to connect our mentors, right? Our group members. So yeah, we are concluding the sessions here today, and yeah, thank you so much, guys, for joining. Yeah, bye bye. Take care. Thank you.